Okay. So yesterday what we have discussed, the use of graphics. So we have discussed there are so many uses, like in the field of security, in the form of CCTV camera. Okay, these days we see a lot of CCTV camera all around us, and this is an example of digital image processing, and digital image processing is a subset of the computer graphics. And one more important aspect is IoT. Okay, Internet of Things. These days we listen a lot of things about what is IoT, what are different IoT devices also. So in this case AI, that means artificial intelligence, plus DIP, okay, digital image processing. So these are the basic thing which been used these days. So DIP, as I already told, is a subset of the computer graphics field, and therefore in this case also the computer graphics been involved. In the field of satellite imaging, this field is been involved. Okay, I am also having a very good PPT for you, and in that PPT all these things have been discussed, so it will be beneficial for you too. Fields in the movie industry, as you can see in the form of animation, you watch the use of computer graphics at so many places. Okay, these days the field animation is very much famous, and in the case of animation, the basic is, what is basic thing? The basic thing is the computer graphics. In the game industry also we see a lot of game these days, and in this case also there are a lot of use of CG, that means computer graphics. This is the another field. I just told you that it is also been used in the field of medical imaging. Okay, in the form of X-ray, MRI. You have seen a lot of images in the form of the CG. Okay, like this is the case of the brain. I think it is the skeletal images, and likewise the third image is the image of leg. Okay, so these are the different kind of images. So all okay, this is the case of mechanical engineering. Okay, in the case of mechanical engineering, first of all the engineer have to design different parts of the machine. Okay, so these are how we can design that part by using the animation drawing. Okay, so this is also one of the example of this is a ball on which the lighting is from different sides, and we have seen how the reflection goes and how the ball is looking like. So in this way we can identify how the ball is looking like, and this is also an example of CG. Okay, so we have seen a lot of examples, so that okay, now by these things, by these examples, now we have understood that CG is a very important field, and we have to so we have to understand that what are the basic things behind the CG. Okay, CG means computer graphics. Okay, I will take the name as CG because it is too lengthy name. So
what are different applications, what are different softwares, what are different hardwares which are involved in the field of CG. So in the field of software, you have heard the name as Maya. Okay, Maya is a very important software in the field of animation, and because animation is a subset of CG, therefore it is very important. Okay, application, you have seen a lot of applications of the CG. I have just discussed. The object is an artist's rendition of the sun for an animation to be shown in a dome environment. So there are so many applications. This is one of the application being given here, but I have discussed so many applications for the CG, and you have seen that. So the software requirement is Maya. Maya is the best software, therefore the Maya has been given here. Okay, and for the hardware, there are so many hardware being required. What are different kind of input devices, what are different kind of output devices. So there can be so many hardwares involved in this field. Okay, like if you want to play the game, okay, so these days there are so many PSP devices. Okay, and there are but if we talk about the basic devices is the PC itself, and the basic devices of PC is mouse, printer, scanner. These are the basic devices used for the basic element of the CG. Okay, so these are the basic devices. Okay, and one more important thing is the display device. Okay, display device means what is the keyboard, one more, and it is like a touch panel. Okay, and this is mouse, you will know. So there are the three devices at least which is acting as a input devices for the basic graphic system. Okay, now the input given by these input devices is processed, and it will be converted in the digital format, because your computer is working in the form of digital mode. So this digital input will go to the processor of the computer system, and this processor will identify each of the instruction, how it can be processed, and your architecture teacher will explain in detail how this kind of instruction is working, and you will also learn in the course of microprocessor also. I am not going in detail that how the actual microprocessor is working, but for now you can think that it will work like the instruction processor. Okay, the different kind of instruction will come to the end of the processor, and the processor will identify each kind of instruction, and for that purpose it will need some kind of memory space also, because the actual data is being stored in the memory. Okay, in the field of thing is given. So it is the raw memory, and the processor when will convert the element of memory, the data of memory, and will convert according to the need of basic graphic system. Then that data will be termed as the frame, that memory will be termed as the frame buffer memory. Okay, जैसे मान लो हमने जो है सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दिया कि ड्रा ए सर्किल. ओके, सो इट विल ड्रा ए सर्किल. So to draw a circle, there will be some value on x-axis, and there will be some axis on and there will be some value on the y-axis. Okay, so you know the equation of circle as if this is the center of the circle, this is x-axis, this is y-axis, and suppose its coordinate is AB, then the equation of the circle will be x minus a square, okay, plus y minus b square equal to 1 if its center is here at AB, and if its center is at the origin, then it will be simply x square plus y square equal to 1. Okay,
So what will be the value of x and what will be the value of y? It is actually the data behind how the circle can be displayed here. It is the basic data behind how the circle can be displayed here. Okay, when you increase the value of x in this direction, that means x equal to 1, x equal to 2, 3, 4, 5, then according to that data the value of y will be calculated and it will be drawn on your screen. So this is the data. Okay, so this data should be stored at some of the location, है ना? This data should be stored at some of the location in your system so that the instruction can be given to the system according to what drawing is to be made. So this data will be stored in the frame buffer. So frame buffer has the responsibility to store the data which is to be displayed on the screen at this instant of time. Frame buffer is the memory which stores the information needed to display. Just like this is input, this is input. The input given from the keyboard, mouse, etc., etc., and by this input your processor will process the information. Okay, and the processor will convert the information and will store the required information to display into frame buffer. Frame buffer. And it will also take and store the information into the memory, that means RAM. It will store the information into memory, that means RAM. So the frame buffer is having the responsibility to display the image onto the screen. This is screen and the information will be used to display on the screen. Just like I am making the example of CRT tube. In the case of CRT tube, this is a pencil beam of light, and that beam of light will be passed through two kind of fields. One is electric field and one is magnetic field. Okay, one is electric field and another is magnetic field, and this beam of light will be controlled by these two kind of field. Okay, electric field will be having responsibility of x direction and magnetic field will be having responsibility to control in the y direction. So if we can control x direction as well as y direction, then we can draw any figure on the screen. Okay, now the question arises, what are different kind of display system? Different kind of display system. Different kind of display system. So initially it is liquid crystal display. Okay, so what is the architecture behind this? ठीक है, this is a glass chamber, शीशे का. तो इस ग्लास चैम्बर में जो है निमेटाइट क्रिस्टल होते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ निमेटाइट क्रिस्टल इज इट इज ए क्रिस्टल विच कैन पोलराइज द लाइट. ठीक है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि वो लाइट का पार्ट जिसका की ऑसिलेशन निमेटाइट क्रिस्टल के ऑसिलेशन से मैच कर रहा है, वो आपकी पास हो गई. अच्छा, तो हमने मान लिया एक केस ऐसा है कि सारे क्रिस्टल की डायरेक्शन यही है, तो इसका मतलब जो है
लाइट की बीम आपको यहाँ से दिखाई देगी, आपको पूरी स्क्रीन जो है ये आपको वाइट जो है ब्राइट स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ठीक है, दिखाता हूँ कि मान लो लाइन आपको ड्रा करनी है। ठीक है, ये आपका गैस चैम्बर हो गया जिसमें नेमेटाइट क्रिस्टल आपने भरे हुए हैं। अब लाइन आपको ड्रा करनी है, तो लाइन अगर आपको ड्रा करनी है तो ये जो नेमेटाइट क्रिस्टल जो है लाइन के अकॉर्डिंग होंगे, उनकी डायरेक्शन तो ऐसे होगी, लेकिन बाकी क्रिस्टल जो है वो जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री हैं। ठीक है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे, है ना, बाकी क्रिस्टल जो है ब्राउनियन मूवमेंट कर रहा है। बीम जो है पूरी उस साइड की ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो लाइट बीम जो मतलब आपके आंख से स्क्रीन साइड के बाहर निकल रही है ग्लास के, ठीक है, तो वो बीम क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसी एक लाइन का जो है इमेज वहां पर देंगी, तो आपको लगेगा कि लाइन आपकी ड्रा हुई है ना। इसी तरीके से आप जो है डायरेक्शन को अपने जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और जो भी इमेज आपको बनानी है, आपको सर्किल बनानी है या कोई जो है एक आदमी आपका चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी मतलब जो है नेमेटाइट क्रिस्टल की जो डायरेक्शन होगी उसको जो है मोल्ड कर देंगे, एंड द इमेज विल बी ड्रॉन अकॉर्डिंग टू। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई सबके? ओके, नाउ तो लाइट तो इसमें क्या है, इसमें जो है डायोड्स आपके लगे हुए हैं। ये आपका सिंपल जो है रास्टर स्कैनिंग का है, और जिस डायोड को आप मतलब ऑन स्टेट में करेंगे उधर से लाइट आपकी पास होगी, और जिस जो है डायोड को ऑफ स्टेट में रखेंगे वो जो है लाइट वहां से पास नहीं होगी। सिंपल इसका प्रोसीजर है। तो ये जो है रास्टर स्कैन पर काम करता है। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दिया रास्टर। अभी तक जो आपकी टेक्नोलॉजी थी ये थी रैंडम डिस्प्ले। ठीक है, जैसे CRT हो गया, RANDOM, रैंडम डिस्प्ले। तो आपका CRT हो गया या फिर जो है आपका LCD डिस्प्ले हो गया, दे आर वर्किंग ऑन द बेस ऑफ रैंडम डिस्प्ले। रैंडम मतलब क्या हो गया कि जैसे फर्स्ट केस में आपको जो है ये चीज ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि ये लाइट बीम जा रही है और स्क्रीन का जैसा भी एडजस्टमेंट है वहां पर जाकर के बीम आपकी गिर रही है। ठीक है, अगर मान लो ये टीवी आपकी जो है जमीन पर गिर गई, ठीक है, और ये जो आपकी स्क्रीन है वो आपकी तिरछी हो गई, तो क्या होगा कि अब ये बीम आपकी यहाँ गिरेगी और मतलब इस जो है पार्ट में कोई डिस्प्ले नहीं होगा और केवल इस पार्ट में डिस्प्ले आपका होगा। अक्सर जो आपकी बड़ी बड़ी जो आपकी मोटी वाली जो है टीवी रहती थी आपकी, उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम आपने देखी होगी, है ना। लेकिन आजकल के टीवी में इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है ना। तो ये इसलिए क्योंकि इसमें क्या है कि हम लेफ्ट टू राइट लाइट को स्कैन करते हैं। जैसे यहां पर छोटे छोटे डायोड आपके लगे हुए हैं, है ना, छोटे छोटे यहां पर डायोड आपके लगे हुए हैं। तो जब भी स्क्रीन पर डिस्प्ले आपका होता है वो क्या होती है, फर्स्ट एरे आपकी पहले स्कैन होती है, इसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से ये पूरी स्क्रीन जो है स्कैन की जाती है। ठीक है, और ये आपका जो है ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर इज द ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका अपर हो गया। ध्यान रहे, लेफ्ट अपर कॉर्नर इज ऑलवेज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ठीक है, जो भी आजकल की टीवी स्क्रीन मॉनिटर आ रहा है उसमें लेफ्ट अपर कॉर्नर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डिस्प्लेइंग। तो यहां से स्टार्टिंग हो रही है। अच्छा, ये काम स्पीड ऑफ लाइट से हो रहा है, यानी कि स्कैनिंग बहुत तेज हो रही है। तो एक सेकंड में ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है कई बार जो है आपकी स्कैन होगी। ठीक है, तो मान लो ये स्क्रीन जो है वो एक बार पूरा का पूरा स्कैन जो हो रही है, एक बार स्कैन होने में मान लो 1/100 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में जो है 100 बार ये आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन जो है स्कैन होगी।
इसी को इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट बोलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि स्क्रीन का रिफ्रेश रेट क्या है ना, ये टीवी आपको लेनी है, इसका जो है रिफ्रेश रेट क्या है ना। जिस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट ज़्यादा होता है जो है उस स्क्रीन का दाम ज़्यादा होता है, उसका डिस्प्ले बढ़िया होता है ना। जो भी एचडी मॉनिटर होते हैं उनके जो है रिफ्रेश रेट जो है बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो ये जो रिफ्रेश रेट क्या है, यही जो है क्वालिटी को डिफाइन करता है कि स्क्रीन में जो डिस्प्ले आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। तो 1 सेकेंड में जितने ज़्यादा बार स्कैनिंग होगी, जाहिर सी बात है कि इसका डिस्प्ले उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट। तो एक और डेफिनेशन आपको मिली, आप इसको नोट कर लीजिए, रिफ्रेश रेट, ठीक है। 1 सेकेंड में बीम जो है कितनी बार पूरे स्क्रीन को जो है स्कैन कर लेगी, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रेश रेट फॉर दैट स्क्रीन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रास्टर स्कैन हो गया। तो यहां पर मैंने कितने टाइप के डिस्प्ले आपको बताए। देयर आर 2 काइंड ऑफ डिस्प्ले, वन इज रैंडम डिस्प्ले एंड अदर इज रास्टर डिस्प्ले, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है हम जो है सारी बात तो कर रहे हैं। अच्छा, इसको जो है डिस्कस करने के पहले एक मैं साइड में एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। पहले हम रास्टर स्कैन में ये तो आपको बताया कि ये आपके जो है डायोड लगे होते हैं। हम इसके बेसिक लेवल पर आते हैं। हम जो है डायोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पूरी स्क्रीन जो है पिक्सल में आपकी डिवाइडेड है, ठीक है। छोटे छोटे पिक्सल्स में है, पिक्चर एलिमेंट। तो लास्ट टाइम पर मैंने आपको समझाया था कि द स्मॉलेस्ट एरिया टू डिस्प्ले अ स्क्रीन इज कॉल्ड एज पिक्सल, इसी को पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक पिक्सल में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। हर एक पिक्सल में 8 बिट होता है, यानी कि अगर जो है कंप्यूटर को इस पर कुछ डिस्प्ले कराना हो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में, ठीक है, तो उसको 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इसको देनी होगी, है ना। तो मान लो ये इस साइड में आपके 1000 पिक्सल हैं और इस साइड में भी मान लो 1000 पिक्सल हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हो गए 1000, यानी कि 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 यानी कि 10 पावर 6 नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे स्क्रीन पर हैं, ओके। अच्छा, हर एक पिक्सल 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ले रही है। 8 बिट का मतलब 11111111, ये आपकी मैक्सिमम बिट हो गई, यानी कि 255। अगर आप इसको डेसिमल में बदलेंगे तो दैट will be converted into 255, okay. And what will be the minimum value? It will be 00000000, okay, and it is 0. So every pixel varies from 0 to 255, ठीक है। 0 का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सफेद, है ना, एकदम जो है रिन की चमकार, है ना, व्हाइट। 0 का मतलब क्या हो गया, एकदम जो है सफेद रंग, एकदम व्हाइट, मतलब कोई कलर उसके, ठीक है, मतलब जो है बिल्कुल व्हाइट। और 255 का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। तो ये बिल्कुल सॉरी, मैं शायद उल्टा बता रहा हूं, ठीक है। 255 का मतलब बिल्कुल व्हाइट और 0 का मतलब बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। ब्लैक मतलब कोई कलर उसके अंदर नहीं है और व्हाइट का मतलब उसके अंदर सारे कलर हैं। तो अगर ब्लैक की बात करें तो यानी कि हमारे पास एक रेंज मिल गई 0 से लेकर के 255, इसको बोलते हैं ग्रे रेंज, ठीक है। ग्रे कलर क्या होता है, एनी कलर बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट इज कॉल्ड एज ग्रे कलर, है ना। इसकी डेफिनेशन को डिक्शनरी में जा करके देखना, जो है ग्रे की डेफिनेशन यही लिखी होगी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कि एनी कलर बिटवीन 0 एंड 255 इज कॉल्ड एज ग्रे कलर।
तो यहाँ पर भी क्या है, जीरो से, जैसे क्या है कि एक आपका बिल्कुल ब्लैक है, एक आपका बिल्कुल व्हाइट है, तो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में भी ढेर सारे जो है रंग आपके आएंगे, है ना। तो इसको जो है ग्रे कलर बोलते हैं। तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले आपको कराना है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट जो है टीवी अगर आप देखें तो उसमें ढेर सारे जो है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच के कलर आपको दिखाई देंगे। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इस स्क्रीन में कितने बिट का जगह लगेगा। तो 10 पावर 6 आपके नंबर ऑफ पिक्सल हैं और हर एक पिक्सल 8 बिट का स्पेस ले रहा है, यानी कि 8 मेगा बिट, ठीक है, 8 मेगा बिट का स्पेस आपको लग रहा है एक स्क्रीन में, ठीक है, एक। अच्छा, तो फोटो तो आपको जो है चिपकानी नहीं है स्क्रीन पर, आपको तो वीडियो चलाना है, और आप कह रहे हैं कि वीडियो भी HD क्वालिटी का चलाना है, ठीक है। मान लो इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट कितना है, रिफ्रेश रेट आपका 100 है, रिफ्रेश रेट इक्वल टू 100। तो एक सेकेंड में जो है कितने मेगाबिट की रिक्वायरमेंट हुई आपके, एक सिंगल फोटो में 8 मेगाबिट लग रहा है, तो एक सेकेंड में 100 जो है फोटो जो है गुजर रहे हैं, तो 100 गुणे 8 है ना, 8 मेगाबिट, ठीक है, यानी कि 800 मेगाबिट वो आपका एक सेकेंड में लग रहा है, ठीक है। तो अब जरा सा डेटा जो है सोचो जो है कि एक सेकेंड अगर जो है वीडियो आप जो है इस केस में चलाएंगे तो कितने डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो कोई भी जो है आप प्लान लेंगे जियो फियो का, वो सब इस केस में फेल हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये करते हैं कि एक्चुअल जो है फॉर्मेट में कोई भी डिस्प्ले नहीं होता है ना। ये जो फॉर्मेट है ये आपके टीचर बाद में पढ़ाएंगे, इसको जो है कंप्रेस करते हैं आप, ठीक है, इसको जो है कंप्रेस करते हैं। तो जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी साइज बहुत आपकी घट जाएगी, ठीक है। इसीलिए ढेर सारे इसके जो है फॉर्मेट आप जानते हैं, BMP फॉर्मेट है, JPG फॉर्मेट है ना, BMP फॉर्मेट है ना, TIFF फॉर्मेट है, और क्या क्या फॉर्मेट है, JPG फॉर्मेट है, JPG फॉर्मेट है, .jp, ये जो है डिफरेंट टाइप के आपके इमेज के फॉर्मेट हैं। तो BMP फॉर्मेट इज द ओरिजिनल, इसमें हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन दी होती है। इसलिए जब आप जो है रिसर्च का काम करते हैं तो उसमें इमेज को BMP में लेते हैं, क्योंकि हर एक पिक्सल की रिक्वायरमेंट वहां पर होती है। और ये जो TIFF है, JPG है, ये जो है सारे फॉर्मेट जो है कंप्रेस फॉर्मेट होते हैं, यानी कि हर एक पिक्सल की जानकारी नहीं होती है इसमें, ठीक है। ये आपके जो है ना, क्योंकि अगर जो है BMP फॉर्मेट में डेटा को आप सेंड करेंगे तो कितना भी बढ़िया वो आपका फेल कर जाएगा, क्योंकि इतना डेटा इंटरनेट जो है झेल नहीं पाएगा, है ना। अभी आपने जो है यहाँ पर इस चीज को देखा है। अच्छा, ये भी जो है ब्लैक एंड व्हाइट का सीन है। जो कलर इमेज है, बेसिकली 3 टाइप के कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। R मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 जो है बेसिक कलर होते हैं। सारा कलर इन्हीं से मिल करके बना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको इसमें जो बता रहा हूँ। टीचर हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक वर्कशॉप अटेंड की और उनके वर्कशॉप में इस चीज़ को बताया गया कि बेसिक कलर्स आर वाई। स्क्रीन की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप डिजिटल स्क्रीन की बात करेंगे, इन दैट केस RGB आर द बेसिक कलर। और अगर जो है प्रिंट मीडिया की बात करेंगे, पेपर की बात करेंगे, इन दैट केस RYB आर द बेसिक कलर।